बच्चे ना इनके ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। जिस रेट से हमारे ग्रो करते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा या 10 गुना ज़्यादा उनकी ग्रो करते हैं। चाहे LGBT किड्स हो, अंडरस्टैंडिंग हु दे आर, व्हाट दे वांट, देयर नीड्स and opening up in front of parents, for them it's a very 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 difficult task. तो वो हमें माँ बनने के बाद का जर्नी, बट जब बच्चा हो जाता है सो वो बहुत ज़्यादा क्रूशल स्टेज में पहुंच जाता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो चाइल्डहुड साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो व्हाट इज दिस चाइल्डहुड साइकोलॉजी? The most crucial thing every parent wants to understand is their children. How to understand the children who doesn't speak, how to understand the children who speaks. So childhood psychology plays a very important role for parents. You should understand the mental condition or the mental age or mental state of your child. So what is childhood psychology? Childhood psychology refers to a study of mental, emotional, social, cognitive, and development of a child right from the birth to adolescence. It encompasses a broad range of topics, focuses on understand. Every parent wants to understand their children. They want to do right by their children. Okay, some are strict parent, some are friendly parent, and everybody have the question, मैंने तो इतना कुछ ट्राई किया तो भी कैसे क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तो इतना कुछ किया तो भी मेरे बच्चे क्यों ऐसे कर रहे हैं? ठीक है? So in that case you need to understand what exactly how your child is. You need to understand your child. You need to understand what causes their behavior. Children tend to have behavioral issues at every plus minus stage of life. Outbursts is very common. या मेरा बच्चा इतना जिद्दी क्यों है, ये क्वेश्चंस तो सबसे ज्यादा आता है हमें। मेरा बच्चा इतना जिद्दी क्यों है, मेरा बच्चा इतना गुस्से वाला क्यों है, एडमेंट क्यों है। सो यू नीड, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हैंडलिंग ईच एंड एवरी चाइल्ड इज वेरी डिफरेंट। सो you as a parent, you have to understand first how is the child cognitively developed. Cognitive development means how the child solves the problem, लैंग्वेज एक्विजिशंस, मेमोरी कितना शार्प है, परसेप्शन क्या है बच्चे का। So for example, I'll tell you a difference between both my children. Right now my daughter is 5.5 and my son is 3. So when my daughter was 3, she used to finish her play and she used to keep every toy in her basket. She used to do that by herself. She knew that this is my work. After playing, I have to keep things where it is. And she has that habit till date. After finishing a study, keep the books in the bags, I'm sorry. And my son is 3. You ask him to keep the things where it was, he will ask you why. Why? Why will I keep? Why will I do this? So he has a question in every single thing. And what we say, कि बड़े को देख के छोटा सीख जाता है. No, not all parents. No, not all. And I have the live example in my house. My daughter does everything. So my son has the tendency कि वो कर लेगी. For example, if I say my son is not having something, so I'll say my daughter that you have. So I will think that seeing her, he'll have. No. Then my son will say, if she's having, give her. I'll not have. My son is like, if she is having, उनको दे दो। अगर वो टॉयज उठा रही है तो उसी को उठाने बोलो। सो ऐसा नहीं है कि बच्चे एक दूसरे को देख के भी सीखते हैं। सो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट देयर ओन वेज, एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट परसेप्शन। सो एवरी मदर हैज टू अंडरस्टैंड, एवरी पेरेंट हैज टू अंडरस्टैंड एंड डील विद देम। किसी से नरमी में काम हो जाता है तो किसी से सख्ती में काम करवाना पड़ता है। मेरे बेटी के लिए showing the eyes is enough for her to do the thing. But मेरे बेटा, my son is like, he will wait till the extent
कि जब तक शी इज नॉट गेटिंग अप, वो जब तक उठ के नहीं आती है तब तक आई एम ओके, अब आएगी तब मुझे कुछ करना है, इज दैट. So every child is very different. Both of my kids are very different, where both of their upbringing is the same. And both of them are very, very, very different from each other. So that is where childhood psychology, every parent has to understand what your kid goes through, how your kid processes the information. For my daughter, कि कर दो तो मम्मी का प्यार मिलेगा, that is more important. For my son, he's a bit lazy one. So for him, यार प्यार तो ऐसे ही मिलता है, क्यों मेहनत करें? He is that sort of mindset he has. So now उसके लिए I have to tell her, you finish this task, I give you something of your interest. So he is at that stage where this thing works for him. But जब वो बड़ा होगा, I can't keep on driving him for every small thing. So जब वो बड़ा होगा, I have to take a different approach on him. But my daughter को it's not required. She is very smooth going. So every parent has to, has to be creative, has to do a lot of brainstorming. You have no idea how much brainstorming me and my husband does. Ki when we see a new behavior in our child, we call it a skill upgrade. Ki my son has upgraded a skill today. So now we have to do a brainstorming that next time he does that, how to deal with it. So that's what we call skill upgrade. Ki, honey, there is a skill upgrade today. That's what we discuss. So as parents also, we do a lot of parenting discussions. That is very healthy. You both have to be in the same team. You both as parents have to, when the mother is scolding, the father or the family, the in-laws, the dada dadi, nana nanis cannot come in between and say, नहीं मेरा बच्चा ने कुछ गलत नहीं किया है. Wrong. That is very wrong approach. That is very wrong approach. A mother जब अपने बच्चे को सही और गलत में फर्क कर रहा है, telling her what is wrong, what is right, the family needs to respect that. The family, जैसे when I am scolding my son, he will cry and he will run to his father and he'll say, Mama scolded me, Mama is bad. My father cannot, his father cannot say, नहीं, you are right. No, मेरा बच्चा ने कुछ नहीं किया. It's okay. No, he will not say that. He will say, beta, it's okay. Don't cry. But you have done something wrong. Understand what your mom is saying. You cannot repeat this. And one more thing is that मैंने एक बार बोला था, उसने किया नहीं. See, children have short-term memory. Children's brains do not have long-term memories till 5. Till 5 years of age, they play with the short-term memories only. Now, as parents, how can we make it in a long-term memory is like continuous, repetitive. For example, when my daughter was in LKG, she learned a poem. Okay? Now, she learned a poem. अब obviously हमने भी बचपन में poem learn किए थे. You don't remember. But now when she's in UKG, it's like almost 2 years. LKG, UKG, more than 1 years. 1.5, 2 years almost. She still remembers that poem. And seeing her, my son also remembers. Why? Because any time we are in the car, just to engage my kids, I will say that poem. And he will repeat. So once my daughter will say, then my son will say, and then I will clap hands, encourage them. Wow, you remember these words. Assuring them with the same information, help them convert the short-term memory to a long-term. Abhi, for example, if somebody's child has got a bad habit of biting me, you are saying that मैंने मारा, मैंने पीटा, तो भी ये छोड़ नहीं रही है. Why? Because the child is doing it when the child is subconscious. When the child is subconscious, he is biting, he or she is biting the nail. Beating them won't make them change the habit. It's a habit. What you can do as a parent is continuous repeating.
रिपीटिंग रिपीटिंग, ताकि वो सबकॉन्शियस को घुस जाए कि नहीं करना है। आप किया तो मम्मी आएगी, आप किया तो मम्मी बोलेगी, तो वो सबकॉन्शियस को सीखने में टाइम लगता है। सो दैट्स condition the behavior. Yeah, you have to keep on repeating. Nakhun mat khao. Don't bite your nails. Don't bite your nails. You are seeing your child is sitting alone, waiting for you to turn your back so that he can do it like this. They will wait. They know कि इनके सामने नहीं करना है. So they know that. So they will wait for you to turn and then they will do like this. That is where don't do, don't do, don't do. मत करो. फिर हम ही बोलते हैं ना कि बार बार मत करो मत करो मत करो बोलते हैं. करेक्ट. बार बार मत करो मत बोलो. सी, ब्रेन को समझो. एक चीज वो सबकॉन्शियसली कर रहा है. जब तक तुम उसको ऑल्टरनेट कुछ देते नहीं हो तब तक वो वही करेगा. यू हैव टू एंगेज हिम इनटू अ डिफरेंट हैबिट इन ऑर्डर फॉर दैट हैबिट टू गेट रिमूव. तो मैंने क्या किया था, मेरी डॉटर स्टार्टेड हैविंग, शी गॉट इट फ्रॉम द स्कूल, स्टार्टेड बाइटिंग नेल्स एंड ऑल. तो मैंने उसको क्या किया कि व्हेनेवर यू आर सिटिंग अलोन थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी डीप, स्टार्ट ईटिंग मुरमुरा. मुरमुरा खाओ. अगर मुरमुरा नहीं है, अभी स्कूल में कुछ सोच रही है, तो यू डू लाइक दिस. अब क्या सबकॉन्शियस माइंड को बाल में रोटेट कराने में मैंने बिजी कर दिया है. ठीक है. अनटिल एंड अनलेस वो कहीं और से कुछ और उठाता है, दे टेक इट. कहीं से भी अब्जॉर्व कर लेते हैं. ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत डेंजरस है. ये कहीं से भी कुछ भी अब्जॉर्व कर लेते हैं. तो जब तक कुछ और नहीं मिलता है, कहीं से कुछ और पिकअप नहीं होता है, ये यहाँ पे चला जाएगा. आफ्टर दैट यू कैन से कि एक रुमाल को ये करते रहो, ये गंदा दिख रहा है यार, ये तुम जो कर रही हो ना ये बहुत बड़ा गंदा दिख रहा है, रिकॉर्डिंग करके कभी दिखा दो. तो फिर क्या होगा, अरे यार कॉन्शियस हो जाएगी, अरे मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है. तो तब उसको बोलो ये ले रुमाल दे, रुमाल में ऐसे कर, या तो अपने कपड़े को लेके ऐसे ऐसे कर. तो यू किड्स टेंड टू फिजिट when they are thinking, when their brain is working, they tend to fidget. We as adults we also do that. कोई ऐसे टेबल में बॉल रखता है, कोई वो स्ट्रेस बॉल रखता है. Why? कोई स्पिनर्स तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. Why these all things have come? See, जब मैं पढ़ने बैठती थी ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज और माई स्कूल डेज, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग समथिंग बट माई माइंड इज समवेयर. ये होता ही है बच्चों का. आई एम स्टडिंग माई डॉटर. My daughter is in cloud 99. So in those cases, मैं पढ़ाई कर रही हूँ and I need my full concentration here, but I'm reading exactly the words, but I don't understand why, because mind is singing something else. So that is where you need your subconscious mind to be busy. The moment you keep the subconscious mind busy, तो वो एक बच्चा होता है. subconscious mind हर एक में एक बच्चा है. वो बच्चे को काम पे लगा दो, तुम्हारा बाकी काम हो जाएगा. तो मैं क्या करती थी, मुरमुरा लेके, एक सिंगल मुरमुरा ऐसे पकड़ के नहीं खाती थी. एक मुरमुरा लूंगी, आई बाइट. सो एक बार इसका आदत डल गया ना, फिर मैं पढ़ने बैठूंगी मुरमुरा लेके. एंड आई कीप ऑन एंड ट्रस्ट मी, whatever I read, I understood. And the second thing that you can do is write when you are reading something. पढ़ो, एक चीज को पढ़ो. आप आपने कुछ तो समझा होगा उसको लिख लो. अब कल सुबह उठ के जो लिखा है वो पढ़ो, आपको याद आ जाएगा. बिकॉज योर माइंड हैज रिटन इट, सो योर माइंड विल रिमेंबर हिज ओन वर्ड्स. You might not remember what you have read, but you will remember what you have understood. So जो लिखा है ना वो एक बार पढ़ोगे ना तो वो माइंड में हो जाएगा. 3 दिन वो 3 पेज पढ़ोगे ना तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा. दिस इज अ वेरी इजी ट्रिक टू रिमेम्बर और मग अप समथिंग. True. लिख के पढ़ोगे ना तो तुम्हारा आईज, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा ईयर्स, मुंह, जो सेंसेस है, दे आर फोकसिंग ऑन दैट. So that will be much easier for you to remember. अच्छा, जहां तक बात है एज अ पेरेंट, इमोशनल डेवलपमेंट हर एक बच्चा का बहुत डिफरेंट एज में होता है. सो इन दोज केसेस इमोशनल, आपको पता होना चाहिए कि मेरी बेटी का सडनली आउटबर्स्ट स्क्यू हो रहा है. सो दैट इज नॉट द टाइम टू, ये जो एक मिथ है हम लोग बोलते हैं ना, बॉयज डोंट क्राई,
तुम लड़की हो क्या, लड़कियों के जैसे रो रहे हो? हम बच्चों को बोलते हैं, वो बहुत गलत है, ऐसा पेरेंट नहीं बोलना चाहिए. योर बॉय शुड नो that in case I don't feel right, something I am not liking, my heart is aching, I can cry my heart out in front of my mother or my father. These two people are my safe zone. I always tell my daughter, not from now, when she was 4.5, I used to, when I was teaching her touch, good touch, bad touch, I was teaching my daughter. That is where I told her, Mama, this is your safe zone. I will not judge you. This zone, you can come and tell me anything. You can tell me anything that comes in your heart. If you want to cry, cry here. Trust me, you will feel. If you cry when you are alone, if you cry when you are, अकेले में जो रोते हो, अंडरस्टैंड, मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी. आई वॉन्ट टू, यू नो मैं चाहती हूँ तुम्हारे आंसू पोंछना, उसके लिए आपको मेरे सामने रोना पड़ेगा. तो वो रात को एक दिन उसके पापा ने उसको सुलाई नहीं बोल के, वो सडनली, मुझे आवाज आ रहा है, शी सॉबिंग, एंड आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड. पापा ने मुझे सुलाया नहीं, पापा सो गए. तो मैंने कहा ये अकेले में क्यों रोया? मुझे, अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे उठा के बोलो, या पापा को उठा के बोलो. पापा सो गए होंगे तो किसी को भी आप उठा के बोलो, पर अकेले में रो के आपको कोई फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा. तो अकेले में कभी नहीं रोना है. हमेशा ये सेफ जोन है तुम्हारा, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे सेफ जोन है, यहाँ पे आके रो, कुछ भी बोलो, आई एम देयर. मैं, हमारे मम्मी के सामने हम बहुत कुछ बोलने में डरती थी. अरे बाप रे, मम्मी तो तबेड़ लगा देगी. हम डरते थे बिकॉज वी हैड दैट माइंडसेट कि भाई माँ बाप के पास मत बोलो, किसी के पास भी बोलो, माँ बाप के पास मत. बट आई डिड नॉट वांट दैट फॉर माई चाइल्ड. फॉर माई चाइल्ड आई वांटेड her to understand that this woman will tell me what is wrong, tell me what is right, appreciate if I am right, correct me if I am wrong, and she will never judge me. Judging somebody is very, very wrong because बच्चे ना judgment से डरते हैं. ये गंदा बच्चा है, इससे बात मत करना, मेरे बच्चे उस बच्चे से मिलना नहीं चाहिए, ये नहीं. I'll tell you a small incident. My daughter came to me and she told me, Mama, suddenly out of the blue, she's 5.5. Out of the blue, she's in upper KG, upper kindergarten. She told me, Mama, I don't want to make a boyfriend. I was like, okay. I never used this word boyfriend in front of you. You have never watched this in any cartoons. Why did you say boyfriend? Like, from where did this thing come in your mind? Who told you? So before giving any information to your child, this is the first basic rule as a parent. Know from where this is coming. Know how much they are aware of that information. And then give any comment or information based on their age. Okay? These are 3 important things that a parent should understand. Any question comes with a lot of questions. They have a lot of things going in their mind. They want to know many things. So just don't give away all the information at once, which is not age appropriate. So in that cases, when she told that, I wanted to gauge from where is it coming, how much she knows about this thing that she's wanting to tell. So she told me, my teacher told me to make friends with the boys in my class. With boy friends. Okay. I said, okay. And she has a fixed friend, that is her society friend. She is in her class and she is very happy with her. So she says that Naira is there. Why do I need? I said, no. You need to socialize, you need to play, you need to make new friends. Naira is there, she's your permanent friend, very good. But one thing remember, today I am telling you, you remember that thing, and 10 years down the line, we will discuss this topic again. Not now, 10 years down the line. Today I will say, make friends whom you want to. Play with everyone. That is 2 different things. You play with every children. But when you call friend,
That is somebody you share your thoughts, feelings, conversation, communications with. You choose that depending on your safe, your expression, exchange of information. Choose your own friend. I will never tell you to make friends with this XYZ person. I might tell you to play with that person or take her in your games, but choosing a friend is your right. I will never tell you whom to choose and whom not. Whom not. Right now. But mama, if ever in your life, if I come and tell you, don't play with this person, don't make friendship with this person, then you can ask me questions. Why? I'll give you an answer. But you have to listen. Because being a mother, I might foresee things that you can't. So based on keeping you, protect you, I might tell you whom to not be friends with. But choosing your friend is your sole right. मैं कभी नहीं बोलूंगी कि इससे दोस्ती करो. मैं बोल सकती हूँ इससे खेलो. एक बच्चा आया है, तुम इसको लेके खेलो. पर दोस्त चूज करना तुम्हारा राइट है. बट अगर मैंने कभी किसी कि तुमको अलग से अकेले कभी बोला कि ये दोस्त तुम्हारे लिए सही नहीं है, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट. सो शी सेड ओके मम्मा. शी वाज वेरी हैप्पी कि मम्मा ने बोला है बॉयज के साथ दोस्ती नहीं करनी है. शी इज लाइक, और नेक्स्ट दिन जाके टीचर को भी बोल दिया मेरी मम्मा ने बोला है मैं जिसके साथ दोस्ती कर सकती हूँ, मैं बॉयज के साथ नहीं खेल. So she is that. So depending on the question that is coming from your child, understand. First rule, understand. कितना इंफॉर्मेशन पता है, कहाँ से आ रहा है ये क्वेश्चन, पूरा इंटेल पहले लो बच्चों का. एंड डिपेंडिंग ऑन द एज एप्रोप्रिएट में उसको बोलो. आज मैं आपको यहाँ तक ही बताती हूँ. इससे आगे आपके जो क्वेश्चंस आप मुझे बोल सकते हो, पर मैं और अच्छे से आपको 10 साल के बाद 5 साल के बाद समझा सकता. ट्रस्ट मी, समटाइम्स दे आर ओके विद दैट मच. दे आर ओके. सर आपने तो बता दिया चाइल्डहुड साइकोलॉजी के बारे में. सो आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस इन चाइल्ड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट. Okay. So childhood is a period of intense growth and development, and there are several critical stages in it. Starting from the birth, ये बच्चे ना इनके ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं. जिस रेट से हमारे ग्रो करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा उनके ग्रो करते हैं. तो उनका जो नॉलेज जानने का जो इच्छा होता है, दे वांट टू नो मोर, दे वांट टू अंडरस्टैंड मोर, दे वांट टू ग्रास्प मोर. अ चाइल्ड कैन लर्न up to 7 languages till the age of 5 at one shot. I am a multi, like I am Bengali living in Pune. So my kids at this stage of life, my son 3 years old, he knows Bengali, English and Hindi, and he's learning Maharashtrian Marathi. He's learning because my neighbor is Marathi, so he's learning Kai Dhala. Okay. So a child till the age of 5 absorbs, I will not say grasp, I will say absorbs information. Their brain absorbs information that can be in any form. And that is where as a parent you need to be very, very careful of behaving behaving with each other. What your child is watching, you have to be very careful. And सी, हम लोग क्या सोचते हैं, यूट्यूब किड्स चालू कर देते उसमें तो कार्टून ही आता है, दे कैन सी. इफ यू सी, इफ आई टेल यू समथिंग, यू विल बी शॉक दैट हम लोग तो टॉम एंड जेरी देख के बड़े हुए थे. बट राइट नाउ बीइंग एन एडल्ट, इफ यू सी टॉम एंड जेरी, टेक अवे क्या है? कैन यू टेल मी अ टेक अवे फ्रॉम अ टॉम एंड जेरी एपिसोड? इसने इसको मारा, इसने इसको कैसे मारा, इसने उसको उस तरीके से मारा, इसने इसको मारने का प्लान बनाया. दिस इज व्हाट वायलेंट इन नेचर. बट मजा बड़ा आता था. ठीक है. सडनली आई सी द किड्स टेंड टू subconsciously absorb those information. Now
As a psychologist, I will give you, there are very few cartoons that we say that प्लीज ऐसे बच्चों को दिखाओ. There are very few. जैसे पेपा इज वन ऑफ देम. पेपा एक ऐसा कार्टून है जिससे बच्चे इंग्लिश इंग्लिश वर्ड्स बहुत अच्छे से सीखते हैं. वो जो प्रोनाउंसिएशन एंड उसके बाद जो उसके ऊपर कोई भी एक ट्रिमेंडस, फॉर एग्जांपल दैट पेपर से समबडी, वाओ इट्स अ ट्रिमेंडस थिंग, तो नैरेटर ने ट्रिमेंडस को एक्सप्लेन करते हैं. ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस मीन्स दिस. सो ये जो पेपर पिक का है ना, इट्स वेरी गुड फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके. एंड इवन आई विल से दैट देर आर मेनी थिंग्स यू विल लर्न इन इंटरनेट. फॉर अकॉर्डिंग टू मी, कोकोमिलन, जो छोटे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, सी, you should always control the screen time for your kids. You should always, have that contained screen time. But बच्चों को कोकोमिलन के गाने सुनाते हो ना, हमारे ज़माने में जैसे हम राइम सीखते थे, वो लोग आज मेरे मतलब 2 years old राइम्स बोलता है वो कोकोमिलन सुन के. तो आप स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हो कोकोमिलन का, और आप कोकोमिलन का ऑडियो सुना सकते हो. बच्चे राइम्स बहुत अच्छे से सीख लेते हैं. सो दिस ऑल थिंग्स इज इम्पोर्टेंट. अब आपको कुछ तो उनको फॉर कुछ तो छोड़ना भी पड़ेगा. आप कंटिन्यूअस तो बोल नहीं सकते मेरा बच्चा टीवी नहीं देखेगा, मेरा बच्चा कोई स्क्रीन टाइम ही नहीं हुआ. बट जब आप स्क्रीन टाइम देते हो एज अ लीजर टाइम, फॉर 1 hour, फॉर 45 minutes, फॉर 2 hours मैक्स, मैक्स, कंटिन्यूअस 2 hours इज टू मच फॉर अ चाइल्ड. ठीक है. तो मैक्स अगर मतलब एक मूवी 2 hour तक जाता है, तो दैट इज वाई आई से 2 hours. एक मूवी देख लिया, जैसे इनसाइड आउट इज अ मूवी. उसमें एक बच्चा से लेके एक बूढ़ा तक हाउ ब्रेन वर्क सीख लेता है. इनसाइड आउट से माई 3 year old 2.5 था जब उसने देखा था. वो 2.5 year old का बच्चा, उसने अपना इमोशन को एक कलर से जुड़ा और वो अपने इमोशन रेडिएट करना सीख लिया. जैसे उसमें दिखाते हैं, रेड इज एंगर, येलो इज जॉय, blue is sadness, purple is fear, and green is disgust. So one day I gave him something to eat, and my daughter said, "Yuck, Mama, I don't want to eat." My son suddenly said, "Mama, she's green, she's disgust." And I was shocked. And when he is angry, he would say, "I am becoming red." And he's angry. He's trying to express that I am red, Mama, I'm angry. Why are you doing this? So I say, but I want my baby to be yellow. I love yellow. Yellow means joy. So suddenly he said, I am yellow. I love yellow. I enjoy Mama. And I understood that he's radiating his own emotions with the colors. So when he will say, he'll cry and say, Mama, I'm blue. You are red. I am blue. Once मैंने उसको डांटा है. I scolded him for some. So he said, Mama, are you red? Because I am blue. Mama, please become yellow. This is how he's explaining his emotions. It's a very good thing. I was impressed with that movie. So my recommendation will be, go watch the movie with your kids. Inside Out Part 1. Inside Out 2 is for adolescence period when like 12 plus बच्चे जब होते हैं, देर जो additional hormones आते हैं उस पे है Inside Out 2. But Inside Out 1 is a very, very, very good for kids. They will understand how a personality is built, how a person is built, how long term short term memory works, how a kids can understand their own feelings with the color they match it, because kids are very vibrant about these colors attract kids. Why do you think Cocomelon is so colorful? If you see a Cocomelon video, because जब एक बच्चा कोकोमिलन दिखता है उसका पलक तक नहीं झपकता है, because of this colors. So they have connected the colors with the emotion. That's a very wise thing. So this is how you can, every child has a stage. Okay. So now I'll start with 0 to 2 years. This is a stage where your kid thinks you are the most important, supreme thing in their life.
Mother and father is the most, if their touch, their voice, their warmth, even if you hold your child, they tend to calm down. This few things like trust and mistrust, we can say 0 to 2 years is all about you should hug your baby, you should give skin to skin contact. दिन में पार उसको रात को थोड़ा सहलाओ, उसको रात को अपने बदन से लो. It helps their brain to develop also. You know how amazing it works. Why after birth for बोलते हैं skin to skin करो? बिकॉज एक बच्चा अंदर में अपनी माँ का आवाज, माँ का हार्ट बीट और वो वार्मथ में सडनली बाहर आ गए तो उसको क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो रखी है. And तब उसको स्किन टू स्किन देने से वही वार्मथ, वही हार्ट बीट और वही आवाज सुनाई दे रहा है तो वो शांत हो जाता है. हाँ हाँ ठीक है, चलो हाँ माँ है. सो दिस थिंग इज मदर इज नॉट देयर, फादर. फादर का आवाज सुनता है एक बच्चा. अगर एक माँ अपने नानी के घर में थी उसके 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, देन द पर्सन जिसके साथ उसकी माँ ने ज्यादा कम्युनिकेट किया उसका नेक्स्ट आवाज उसको ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है, उसके पास वो ज्यादा काम हो जाता है. बिकॉज दैट इज द टाइम अ बच्चा इज लर्निंग टू ट्रस्ट. व्हाई दे गेट पैनिक इफ दे डोंट सी देयर मदर. जब उनको भूख लगती है माँ चाहिए, सोना है माँ चाहिए, माँ 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 माँ. क्यों? क्योंकि वही इंसान का तो आवाज. मेरे बच्चे बंगाली सीखे बिकॉज पेट से मुझे बंगाली बोलते हुए ही सीखा है. बट आई एम लिविंग इन अ महाराष्ट्रन एरिया, बट मेरे बच्चे फ्लुएंट बंगाली बोल रहे. हाउ इज दैट? हाउ इज दैट? बिकॉज माँ से जो वर्ड, मातृभाषा उसी को बोलते हैं. माँ जो भाषा बोलती है, माँ ने जो सुनाया है, माँ ने जो सिखाया, वही भाषा उनके मुंह से निकलेगा पहले. तो अटैचमेंट, ट्रस्ट फॉर्मेशन, दिस इज द स्टेज. फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी बोलते हैं उसको. 0 to 2 years इज इन्फेंसी पीरियड. ठीक है. तो ट्रस्ट, अटैचमेंट यही होता है. तो द इन्फेंट प्राइमरीली टास्क, मतलब द इन्फेंट्स प्राइमरी टास्क ड्यूरिंग दिस स्टेज इज फॉर्मिंग सिक्योर अटैचमेंट्स विद अ केयर गिवर. जो उसको खाना खिलाएगा, सुलाएगा, उसको गर्मी देगा, उसको कंफर्ट करेगा, उससे वो अटैच हो जाएगा, उससे वो ट्रस्ट करने लग जाएगा. और इसका इम्पैक्ट ऑन लेटर डेवलपमेंट इज दैट अ चाइल्ड हु एक्सपीरियंसेस सिक्योर अटैचमेंट इज मोर likely to develop healthy relationships and self esteem in life. उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज 2 to 6 years ऑफ एज. उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. क्यों? उसकी डेवलपमेंट टास्क क्या होता है उस टाइम इज दैट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये हम अगर उस टाइम बच्चों को बोलते रहते हैं ना, ये 2 से 6, तुमसे कुछ ना हो पाएगा ना, तेरी की इतना भी नहीं कर पाए तो, इतना भी तुमसे नहीं हो रहा है. नो 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 नो. ये वर्ड्स जो है ना उनको कहीं और हिट करता है. ये टेंशन वो, मैंने एक दिन, मेरे से भी गलती हुआ कि मैंने अपनी बेटी को बोला ये ठीक से रख नहीं सकते थे तुम. हमारे मुंह से निकलता ही है, हम भी पेरेंट्स हैं मेरे लिए, ये तुम ठीक से भी नहीं रख सके. द नेक्स्ट दिन मेरी बेटी पहले से ही बोलती मम्मा मैं ये ठीक से नहीं कर पाऊंगी, मम्मा मैं नहीं कर पाऊंगी. दैट इज वेयर आई रियलाइज, ओ माय गॉड, ये मेरे से क्या हुआ. दैट इज व्हेन नो नो, आई वाज रॉन्ग, यू वर राइट, तुमने सही किया था. सॉरी अपने बच्चों को बोलने में कभी हिचकिचाओ मत. अगर आप सॉरी बोलोगे तो वो सॉरी बोलना सीखेंगे. तो बच्चों से सॉरी बोलने में, अपना गलती मानने में कभी शर्माना नहीं चाहिए. दे शुड नो दैट पेरेंट्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, दे आर जस्ट लाइक अस. तो मैंने बोला मैं गलत थी मम्मा, आई एम सॉरी एंड यू वर राइट. आपने ट्राई किया था एंड दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी. आप एक बार ट्राई करो, मैं आपका साथ हूँ. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बैक एंड शी विल डू अ ग्रेट जॉब. So that is how this stage, 2 to 6 year works. और why is it important? I'll tell you. During this stage ना, हम उसको टॉडलर्स या प्री स्कूलर्स बोलते हैं. इस टाइम में 2 to 6 years का स्पेस होता है, तो टॉडलर्स या तो प्री स्कूलर्स. तो ये टॉडलर्स या प्री स्कूलर स्टेज में ड्यूरिंग दिस डेवलप ऑटोनॉमी एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. ये स्कूल जाने लगते हैं, ये कुछ कुछ चीजें अपने से करने लगते हैं, ये ग्लास में पानी पीना सीखते हैं, खुद से खाना सीख रहे हैं,
They sometimes try to wear their own clothes, button their own shirt, wear their own shoes. तो इसको हम लोग को मोटिवेट करेंगे ना, इस स्टेज में मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कितना अच्छा काम किया, ठीक है? अब बाकी लोग सोच के बोले बाप रे! इसने तो बस जूता पहना है, इसमें इतना बड़े बात क्या है? नो, ये चीज़ ना उनको मोटिवेट करना होता है कि माय पेरेंट्स एप्रिशिएटेड व्हाट आई डिड। ओह माय गॉड! आई हैव डन समथिंग बट आई विल डू इट टुमारो आल्सो। दिस इज़ व्हाट वी एज़ पेरेंट्स should support. They start to do things on their own, like dressing themselves, using toilet, every single time, toilet training. हम्म, बचपन से मैं उसको बिठाने लगी। फिर एक टॉयलेट ट्रेनिंग से याद आया, आई जस्ट टेल दैट मच, इट्स इम्पोर्टेंट, व्हाई आई टेल यू, बिकॉज up to 3-4 years, that is the time where you are toilet training a child, starting from urine to loo. So in that time, धीरे धीरे फ्रॉम दिस नॉर्मल बच्चों वाला जो पॉटी होता है टू पॉटी सीट ले जाके जब हम बड़ों के जैसे कमोड में उसको पॉटी सीट के बिठाते हैं, हमें टाइम सेट करना पड़ेगा। सेट अ टाइम ऑफ 2 hours। हर 2 घंटे में उसको ले जाके आप वॉशरूम में बिठाओ, रिगार्डलेस उसको आया नहीं आया, नहीं करेगा छोड़ दो, फिर से 2 घंटा बात करो। और अगर उसने टॉयलेट में किया तो उसको एक शाबाशी दो, उसको थोड़ा सा अवॉर्ड रिवॉर्ड वाला टाइम ये है। जैसे माय सन लव्स काजू, तो मैं उसको पॉट में सुसु करने के लिए काजू देती थी। अरे वाह, यू हैव डन अ गुड जॉब, दिस इज फॉर यू, काजू दिया। अरे काजू मिला, यस। फिर खाकरा, ही लव्स खाकरा। तो एक टाइम में वो जब खुद से बोला मम्मा सुसु, उसको खाकरा मिला, तो उसको पता है कि नेक्स्ट टाइम बोलना है तो मुझे खाकरा मिलेगा। आई एम सो एक्साइटेड। सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट। अवॉर्ड रिवॉर्ड वाला ये स्टेज है। इस स्टेज में ये 2 to 6 years अवार्ड रिवॉर्ड वाला गेम खेलो उनके साथ। कुछ अच्छा काम करे, अवार्ड दो। पनिशमेंट कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि मार दिया या कान पकड़ के ये कर दिया। नहीं, मारना, सी आई नो पेरेंट्स, आईने हमसे भी कभी कभी होती है, वी रियलाइज इट आफ्टर वी हैव गिवन देम वन। बट बताए क्या, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जैसे मैं, एज ए एडल्ट, एक एडल्ट को नहीं मानना चाहिए, वी से इट रॉन्ग। हम जानते हैं क्या सही है, हम जानते हैं क्या गलत है, तो भी हम एक दूसरे को मार नहीं सकते। तो एक बच्चा तो जानता भी नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तब भी हम उसको मार रहे हैं। तो हाँ, हम लोग को डिसिप्लिन करने के लिए पनिशमेंट देना, जैसे फॉर मी इट्स फेस द वॉल, गो फेस द वॉल, और यू विल नॉट गेट खाकरा फॉर 1 day, यू विल नॉट वॉच कार्टून फॉर 1 day, दैट इज द पनिशमेंट दैट इज इट, एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर मी। अरे नहीं मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी, मम्मा आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम, आई विल डू नेक्स्ट टाइम, काम हो जाता है। फॉर माई डॉटर, मुझे कभी उस पे हाथ उठाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। फॉर माई सन, मुझे उसको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने में एफर्ट लगाना पड़ता है, बिकॉज़ ही इज़ वेरी एडमेंट चाइल्ड। वो अड़ जाता है, मैं क्यों करूँ? ही इज़ अ 3 ईयर ओल्ड सन आस्क्स मी, मैं क्यों करूँ? ठीक है? तो मुझे मेरे मुँह से निकल जाता है, बिकॉज़ आई टोल्ड यू टू डू सो। बट देन आई रियलाइज़ आई हैव टू एक्सप्लेन हिम, आई कांट से दैट। बिकॉज़ कीवी, इफ यू डू सो, कल वो मेड सुबह आके आपका टॉयज फेंक नहीं देगी। सो यू नीड टू प्लेस द टॉय इन द बॉक्स। व्हाई? टुमारो व्हेन यू लुक फॉर द कार, you will get it. Or is what will happen? The crow will come and take your car and he'll go. हाँ, this story will make him think, okay भाई, let me keep it in its place, वरना मेरा लॉस है। So when a child asks you why, make up something, give them a reason to do so, give them a proper reason। एंड बच्चे, जैसे माई डॉटर आस्क मी दैट डे कि गॉड खाना क्यों नहीं खा रहा है, मैं तो रोज खाना देती हूँ, गॉड खाना क्यों नहीं खा रहा है मम्मा, ये रोज मैंने किशमिश धो के दिया है आज, फिर भी गॉड ने खाना नहीं खाया। तो फिर मैंने उसको समझाया, बेटा गॉड सिर्फ हम उनको देखते हैं एक जगह, पर वो हमें हर जगह है, वो हर जगह है। ही गॉड इज इन एयर, एयर हर जगह होता है, वैसे गॉड भी हर जगह होता है। तो कैसा होता है, गॉड इनविजिबल बाइट्स लेते हैं। तो आप प्रसाद देने के बाद, चढ़ाने के बाद हाफ एन आवर तक उस तरफ देखो मत। तो गॉड आते हैं, उनको अकेला छोड़ दो। गॉड आते हैं, इनविजिबल बाइट लेके जाते हैं और बाकी हमारे प्रसाद के लिए छोड़ के जाते हैं।
That story played very nice role. I have heard it from somewhere, obviously. Some very nice woman has told me that one. So I took it from, I used it because friends, we talk about parenting. We just say one more thing I'll share with you that's very interesting is that when my daughter was growing up, if she would, I told her that story of woodcutter. वो जो वुडकटर के एग्स गिर जाते हैं और सेकंड वुडकटर ने लाइस बोला तो फेरी डिसअपियर हो गया. So if she lies and I will tell her you're a bad woodcutter, she'll cry. No, 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 I don't want to be bad woodcutter. Okay. So what's she will say, how do you understand, Mama? She told me this. So I told her, whenever you lie, there is a star lighting up in your forehead that only Mama Papa can see. That is visible to Mama Papa's eyes, and nobody else can see that. You even yourself can't see that. So now how I understand she's lying is because when she lies, she'll do like this and she'll lie. Okay. She will eat her forehead and she'll lie. And that is how she lies. And I understand that you're lying. So that is how I played the trick with her. Every children needs a new story. Trust me. Every child needs a story. So we friends, we tend to exchange these thoughts. So Hmm. that is how this thing comes कि जब भी कोई बच्चा why वाला पूछे and something you have instructed them to do and they will ask you this question, why me, why will I do, why this, why that, answer them. If Hmm. yours, अगर तुमने उसको कुछ करने बोला है and you don't justify him, be it any story, if you don't justify for them, they might see it wrong. For example, you are an adult. If I tell you to do something which you're not feeling like, you will not feel like doing something, then you will also ask, why me? Why you're telling me? I'll not do it. So for a child also, they need that reason. They're very small. They don't have to process the information. So that is the reason. Explain something. Anything be it. Explain. जब कुछ Hmm. करने बोलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बच्चा मांगता है तो दो, उसको जस्ट डिस्पर्स मत कर दो क्योंकि मैंने बोला है करो, मैं तुम्हारी माँ हूं. नहीं नहीं पूछ सकते, नहीं बोल सकते. So that's so this stage encouragement and positive reinforcement from the caregiver helps the children build self confidence and sense of competence. कौन पहले Hmm. टॉय करता है, सो देखा गया, मेरा काम हो गया. ऐसा खेल खेल में सब सिखाओ, खेल खेल में कराओ, ये खेलने का उम्र है उनका. और इसका इम्पैक्ट लेटर डेवलपमेंट में कैसे होता है, टेल यू. सक्सेस इन दिस स्टेज leads to sense of autonomy and independence. While failure and overprotection can lead to feeling shame and doubt about their abilities. Okay, this impacts their ability to take initiative, to handle challenges as they growing. तो इसके बाद जो स्टेज आता है वो है मिडिल चाइल्डहुड. ये होता है 6 से 12 साल का. इसमें हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी. इसमें जो मेन की डेवलपमेंट जो एक बच्चा सीखता है वो है मास्टरी एंड कॉम्पिटेंस. इसमें मास्टरी कोई भी चीज का वो मास्टरी करता है, वो कॉम्पिटेंस में लगता है अच्छा वो कर रहा है मुझे भी खत्म करना है. अभी इस स्टेज में इसका इसका इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टेज इज दैट Hmm. this is a stage of growth which is which a children starts to gain skills. बहुत skills सीखते हैं, both academic both social, and begins to compare themselves to their peers. अभी स्कूल जाने वाले बच्चे इतने कंपैरिजन में लग जाते हैं. उसकी मम्मा ने वो हेयर बैंड दिया है, उसकी मम्मा ने उसको वो डिज्नी वाला फ्रॉक दिया है. अब लो. Hmm. इसीलिए हम एक और चीज जो बोलते हैं, जो सी हम एवरी पेरेंट्स वांट कि मेरा बच्चा टॉप स्कूल में जाए, टॉप एजुकेशन ले. हम लोग दो चीज में बहुत ज्यादा भूल जाते हैं ये कंपटीशन में. फर्स्ट, बच्चे का सेहत. हम टॉप स्कूल के चक्कर में उनको 2-2 घंटे बस में बिठा देते हैं, 2 घंटा आना 2 घंटा जाना. क्लास 10 तक हम बच्चे को एक नॉर्मल सीबीएसई में बोर्ड में पढ़ा के भी उसको नासा भेज सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन योर इन्वॉल्वमेंट इन योर किड्स लाइफ मैटर करता है.
अब उसके चक्कर में हम 2-2 घंटा बच्चे को ट्रैवल करा रहे हैं अच्छे स्कूल के चक्कर में। मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में जाता है, टॉप स्कूल में जाता है। दैट इज़ फॉर यू, दैट इज़ फॉर योर सेल्फ सैटिस्फैक्शन। और बच्चा सीबीएसई बोर्ड में सीखता है, वही सीबीएसई बोर्ड अगर बिरला स्कूल में हो तो भी सीखता है। बट कम्फर्ट हम भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा बेचारा कितना घिस-घिस के जाता है, कितना थक के आता है। ये चीज़ पे थोड़ा वही। पेरेंट्स को सोचना चाहिए। उसके बाद या तो आप शिफ्ट कर लो, आपको इतना मैटर करता है वो स्कूल, तो आप शिफ्ट कर लो उसके नज़दीक। डू समथिंग, जी। बट ट्रैवल टाइम एक बच्चे के लिए बहुत एग्ज़ॉस्टिंग होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है कि एक बच्चा को स्कूल से घर, घर से और ट्यूशन, ट्यूशन से घर, उसको रिक्रिएशन, उसको खेलने का भी टाइम देना चाहिए। आजकल स्कूल्स तो ये सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। हमारे टाइम में जैसा नहीं था। स्कूल मतलब सिर्फ पढ़ाई और एक गेम पीरियड होता था हफ्ते में 1 दिन। बस उससे अलावा तो था नहीं। पर अभी स्कूल्स में बहुत कुछ होते हैं, म्यूज़िक्स होते हैं, रिक्रिएशन के लिए बहुत कुछ है व्हिच इज़ रियली आई एप्रिशिएट इट। बट उनको थोड़ा-सा मी टाइम देना चाहिए, थोड़ा-सा सेल्फ टाइम देना चाहिए। थोड़ा दिन में आधा घंटा भी एक टीवी उनके लिए भी बहुत कुछ शांत करता है। एक माँ का अपने बच्चे के साथ बात करना, एक बाप का अपने बच्चे के लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये जो टाइम है ना अब हम क्या सोचते हैं कि हमने बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा दिया, एकदम लाख-लाख रुपया फीस हमारे बच्चे और बट हम लोग वी आर स्ट्राइविंग टू गिव देम दैट इकोनॉमिकल स्टेज। हम इकोनॉमिकल मर्सिडीज़ का हमारा है नहीं, हम एक मीडियोकर फैमिली है, हम मर्सिडीज़ नहीं खरीद सकते, पर बच्चे को भेज रहे हैं ऐसे लोगों के साथ पढ़ना जिनका मर्सिडीज़ से वो उतरते हैं, जो पूमा बैग्स लेके घूमते हैं। तो इसमें इन्फीरियॉरिटी आता है। बच्चे वापस आके आपको बोलेंगे, "धुत! आप ये मुझे खरीद के नहीं दे सकते। धुत! आप कुछ कर नहीं सकते।" हम हम अपने स्कूल में जाके लो फ़ील करते हैं इस सब चीज़ के लिए। उसकी उसको बोलो समर वैकेशन में इटली गए थे। हम कहाँ गए? लोनावला। तो ये लेके झगड़ा होता है। सो ऑलवेज़ समझो, चूज़ योर स्कूल और योर चिल्ड्रन्स सराउंडिंग्स डिपेंडिंग ऑन योर स्टेटस। आप जो स्टेटस में हो, आपके बच्चे का सराउंडिंग डिपेंडिंग ऑन दैट बिकॉज़ आपका बच्चा सिर्फ़ बुक से नहीं सीखता है, आपका बच्चा सिर्फ़ आपसे नहीं सीखता है या टीचर जितने सिखाते हैं उतने नहीं सीखते हैं। आपके बच्चे एक-दूसरे से भी बहुत सीखते हैं, सराउंडिंग से जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एब्ज़ॉर्ब वो कॉन्शियसली एब्ज़ॉर्ब करते हैं इन्फॉर्मेशन, हैबिट्स। सो दैट इज़ द रीज़न यू शुड गो विथ अपने इकोनॉमिकल स्टेटस को मेंटेन करते हुए अपने बच्चों को स्कूल्स में डालना चाहिए। फॉर देम टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, फॉर देम टू हैव हेल्दी कंपटीशन। उसके बाद क्या होता है, सी अब सक्सेस इन स्कूल एंड अदर एक्टिविटी fosters a sense of industry as in competence and mastery। जैसे कराटे, उसकी फ्रेंड कराटे सीख रही है तो उसको कराटे में इंटरेस्ट आ गया। अब मैंने कराटे में उसको डाल दिया है तो वो उसमें कंपटीशन आएगा, वो लोग अपना मास्टरी हासिल करेंगे। तो हुँ। ऑन द अदर हैंड अगर फेलियर टू सक्सीड और एक्सपीरियंस पॉजिटिव फीडबैक कैन लीड टू इंफीरियर फीलिंग। हुँ। अब वो कर नहीं पा रही है फिर भी मैं धक्का मार के उसको कराटे में भेज रही है तो क्या हो जाएगा? आपका बच्चा हर चीज में तो माहिर नहीं हो सकता। अगर आप देख रहे हो कि गाना नहीं गा पा रही है, आई मैंने क्लासिकल डांसिंग सीखा है, मेरी बेटी नहीं कर पाती है। दैट डजंट मीन कि वो ड्राइंग में अच्छी नहीं बन सकती है। दैट डजंट मीन कि वो कोई और एक्टिविटी में बास्केटबॉल खेल सकती है, स्विमिंग कर सकती है। तो ऐसा नहीं है मेरे मैंने अपना बच्चा मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती? नो इट्स नॉट दैट, इट्स ओके। देखो शायद वो किसी और चीज में आपसे आगे चला जाए। गिव देम दैट मच स्पेस टू चूज़ देयर ओन हॉबीज़। हम अपने बच्चों पे क्या करते हैं, तुम्हारी माँ सिंगर है, तुम क्यों नहीं सिंगिंग कर सकते हो? मेबी उसको इंटरेस्ट नहीं है। आप हुँ। करो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिंगिंग में नहीं है। आप दे के देखो, अगर उसको सर्टेन इंटरेस्ट आ जाए, नथिंग लाइक दैट। बट अगर नहीं कर पा रही है, तो ये मत बोलो कि तुझसे नहीं हो पा रहा है, यू आर यूज़लेस। तुम्हारी माँ इतनी अच्छी सिंगर है, तुमसे नहीं हो पाया। ये गलत है।
वो चीज़ ना उनके दिमाग में घुसता है इतनी तरह से कि वो बाकी चीज़ों में ना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरी माँ सिंगर है, मैं नहीं सिंगिंग कर मेरे से नहीं होगा ये चीज़ है। और इसका इम्पैक्ट इन लेटर डेवलपमेंट क्या होता है? अ सेंस ऑफ इंडस अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री बिल्ड्स सेल्फ एस्टीम। इंडस्ट्री मतलब कॉम्पिटेंस एंड मास्टरी। ये कम्पीट करके हम जो मास्टरी हासिल करते हैं, कोई भी एक स्किल डेवलप करते हैं, इसका जो सेंस ऑफ ये जो सेल्फ एस्टीम बिल्ड करता है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? व्हाइल फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी कैन लीड अ चाइल्ड्स एबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क्स इन लाइफ। रिस्क्स मतलब ये नहीं कि भाई वो बाइक चला रहा है दोस्त वो रिस्क की बात नहीं हो रही है। रिस्क मतलब नया कुछ सीखने का, कि आज कराटे इतना अच्छा है तो चल लेट्स ट्राई स्विमिंग और लेट्स ट्राई बास्केटबॉल। ये जो नया स्किल डेवलप करने का जो इच्छा आता है, उससे हम नहीं कर सकते हैं। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। एंड ये जो मतलब बीइंग परसिस्टेंट कि नहीं नहीं आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एंड जो कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई डिड इट, इसका मतलब चल वो भी करके देखते हैं, वो भी हो जाएगा मेरे से। ये जो एबिलिटी है, ये एडोलेसेंट और चाइल्ड एडल्टहुड में आपको दिखता है। इसीलिए ये जो मिडिल चाइल्डहुड वाला फेज है, 6 to 12 years, इसमें मोटिवेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। मोटिवेशन, सपोर्ट। अगर बच्चा बोलता है नहीं मम्मा मेरे से आज नहीं हो रहा है, मम्मा आई लॉस्ट द रेस, मम्मा आई एम डन, नो नो बेटा इट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस एंड डू इट वन डे यू कैन डू। दिस इज व्हाट पुश होता है। एक बच्चे को पुश, एक नज जिसको बोलते हैं। हाँ, देख रहे हैं कि भाई 2 साल से कराटे सीख रही है, कोई स्किल अपग्रेड हो ही नहीं रहा है, तो देन टॉक क्या हुआ मम्मा, आर यू लूजिंग द, क्या हो गया मम्मा, यार व्हाट हैपेंड, सीरियसली मम्मा मेरे से नहीं हो रहा है, मम्मा मैं बहुत ट्राई कर रही है। ओके डिड यू ट्राई दिस, यस मम्मा आई ट्राइड, ओके फाइन व्हाट डू यू वांट टू, मम्मा आई डोंट वांट टू डू कराटे, ओके व्हाट डू यू वांट, मम्मा मुझे ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है, ठीक है हम ड्राइंग डाल के दें। ओके, बच्चे को लगेगा कि नो आई एम गेटिंग टू लर्न व्हाट आई वांट टू डू। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में एडल्टहुड में हेल्प होता है, एडल्टहुड। तो अभी इसके बाद आता है एडोलेसेंट पीरियड। एडोलेसेंट पीरियड होता है 12 से 18 साल का। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अपना सेल्फ आइडेंटिटी एक बच्चा इस एडोलेसेंट में ना, इसमें प्री एडोलेसेंट, एडोलेसेंट ये जो फेज है ना, अब मैं बचपन में एयर होस्टेस बनना, पहले तो मिस इंडिया बनना चाहती थी, एंड देन मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, एंड बन तो कुछ और ही गई। बट ये टाइम का कि कंफ्यूजन ऑफ रोल, बनना क्या है भाई। तो मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बन रहा है, अगले दिन वो पुलिस कार बन जाता है, अगले दिन एम्बुलेंस बन रहा है। तो ये चीज एक बच्चों में खेलते खेलते होता है। बट ये जो 12 से 18 साल का है ना, इसमें गलती भी बच्चे करते हैं, और इससे सीखना सिखाना एक माँ बाप पर रोल होता है। और ये टाइम है, माइंड यू, बच्चों को 10 साल तक डिसिप्लिन करो, स्ट्रिक्टनेस दिखाओ, 10-12 साल के बाद उनका दोस्त बने। माँ, मेरे 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 पापा ने कभी मुझे नहीं बोला कि तुम मिस इंडिया नहीं बन सकती है। मेरे पापा ने मुझे एक चीज बोला था, आई स्वेयर आई स्टिल रिमेम्बर टिल डेट। मैं मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट देखती थी एंड आई वाज सो मेस्मराइज्ड कि मैं बोलती थी मुझे मिस इंडिया बनना है, मुझे मिस इंडिया बनना है, मिस वर्ल्ड बनना है, मिस यूनिवर्स बनना है, तो मुझे ब्यूटी पैजेंट में जाना है। इवन क्लास 10 के बाद मैंने एक वेस्ट बंगाल में एक तिलोत्तमा होता था, आई वांटेड टू अप्लाई फॉर इट। माय मॉम टुक मी फॉर अ फोटो शूट एंड माय मॉम आल्सो सेड यू कैन डू इट, बट just to show me that I am not against your wishes or I am not trying to demotivate you. But दोनों ने आराम से बैठ के, my dad mostly said very good, you want to be something, full support, but let me tell you, my work is to show you the path. It's your decision to take which path you want. If you feel that
you have the confidence of walking in a two-piece in front of the world, you go for it. But we are from a mediocre family. If you feel that somewhere आपको वो चीज में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, that is where I'll ask you to sit and rethink over your decision that you go. True. And that what made me think, क्या मेरे से होगा? Somewhere I was also a shy child. And मेरे से होगा क्या? होगा क्या? होगा क्या? नहीं हुआ। Why नहीं? आगे नहीं बढ़ पाई मैं खुद से बोला मम्मा रहने देते मम्मा, हो गया रहने देते तिलोत्तमा, फिर से नहीं होता है। सो दैट इज हाउ, अगर बोल देते नहीं नहीं हो पाएगा, तुम टू पीस बिकिनी में नहीं जा पाओगे, तुम यू कैन नॉट डू इट, क्या होता पता है? जिंदगी भर मेरे दिमाग में रहता था मैं शायद बन सकती थी, मेरे मम्मी पापा के वजह से मैं नहीं बन पाई। शायद आज भी मैं मिस इंडिया बन सकती थी, मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं नहीं बन पाई। आई ब्लेम देम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट वहीं पे they made it look like my decision. Hmm. And that is what I practice in my daughter's life. See how my childhood represents my adulthood. That is what I हाँ. see. My child wants to go to school picking. Personally, I am scared to death. I know teachers are there. I know caregivers are there. I know everything. But I'm scared to death. Why? Why you are taking them at 8 o'clock and you're come back at 5 o'clock the whole day. You're going in bus. क्या पता उल्टी कर दे, ट्यूब करे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ जाके कैसे लोगों को बैड टच, गुड टच, ऑब्वियसली डॉटर है। आई एम अफ्रेड, सो आई एम स्केर्ड टू डेथ कि मेरी बेटी को मैं स्कूल पिकनिक में कैसे भेजूंगी। सो आई कैन से ऑल दिस टू देम। शी इज 5 years। आई कांट से कि भाई तुम स्कूल पिकनिक पे जाओगी, कोई गुड टच कर देगा, कोई बैड टच कर देगा, फ्रेंड्स कुछ कर देंगे। आई कांट से दैट। सो मी एंड माई हस्बैंड वी डिस्कस्ड, आर वी अलाउइंग हर, आर वी नॉट अलाउइंग है। तो वी डिसाइडेड कि नहीं भाई रहने देते, अभी छोटी है, थोड़ा बड़े हो जाने दो, देन वी विल थिंक ऑन। सो हाउ टू कन्वे द मैसेज? अगर बोल दोगे नहीं तुम नहीं जाओगे, बस 3 दिन तक रोना धोना चालू हो जाएगा। हाउ टू कन्वे द मैसेज ना? Okay, so now I gave him, Mama, I know that you want to go there. You want to go and have picnics with your friends. It's a very good thing. But Mama, 2 hours in bus. Mama, you have not traveled in bus. You are traveling in bus and then पता नहीं बच्चे उल्टी कर देते हैं, फिर सो जाओगे गिर गए तो। अब वहाँ पे गए और आपको सुसु पॉटी लग जाती, giving her all the ways of making her uncomfortable. What can go wrong during that scenario? Then वो सोचेगी नहीं मम्मा माई फ्रेंड्स है, मेरी टीचर है, नहीं मम्मा वो मेरी मौसी है। मम्मा व्हाट वर वी प्लानिंग इज दैट वी वर प्लानिंग फॉर अ फैमिली पिकनिक। हम लोग चलते हैं ना मम्मा, कार में जाएंगे गाना सुनते सुनते, गिविंग देम एन ऑल्टरनेटिव, जस्ट गिविंग देम एन ऑल्टरनेट। मम्मा पिकनिक चलते हैं ना मम्मा, वी फ्रेंड्स वी कैन गो। Huh? You choose your friends. I'll ask them if they're free, they can join us. Huh? Let's have a family picnic. No, mama, your brother can also go. Okay, fine. You choose which one you want to go. That bus में travel करके 2 घंटा uncomfortable, या गाड़ी में हम लोग कार में रुक के फैमिली गाना सुनते सुनते मस्ती करते करते जाएंगे। ओके मामा विल गो फॉर अ फैमिली पिकनिक। अब कुछ बच्चे होते हैं स्टिल वो स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं हमें दोस्त निजी फ्रेंड्स के साथ ही जाना है, फ्रेंड्स के साथ ही जाना है, स्टबर्न होते हैं। उसी की एक फ्रेंड है, शी इज स्टबर्न दैट आई वांट टू गो विद माय फ्रेंड्स। तो नाउ उसकी पेरेंट्स वर लाइक, सी इफ यू गो विद योर फ्रेंड्स टुडे एंड समथिंग हैपेंस, देन फॉर द नेक्स्ट लाइफ के लिए आपको तो पेरेंट्स से तो परमिशन मिलने रह जाएगा। उससे अच्छा आप जाओ, थोड़ा सा बड़े होके जाओ। ऐसा तो ये नहीं स्टे स्कूल ट्रिप नहीं होगा, तो थोड़ा सा बड़े होके जब आपको अपने सराउंडिंग्स का समझ आएगा तब आप जाओगे। तो आई विल बी मोर सेटिस्फाइड दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू नो हाउ टू डील इन अ क्राउड, तब जाओ। सो कीपिंग योर पर्सपेक्टिव इन फ्रंट ऑफ योर किड्स इन अ डिफरेंट मैनर, समटाइम शुगर कोटेड, समटाइम बाय स्टोरी टेलिंग, मेक्स देम थिंक कि आज मम्मा का बात सुन लेते हैं, उन्होंने बोला है थोड़ा बड़ा होने के बाद जा सकते हैं, आज सुन लेते हैं क्योंकि मम्मा चलो फ्रेंड्स के साथ ही जाते हैं इस बार। सो दैट इज द अप्रोच। ये टाइम में आपको समझना पड़ेगा, ये मतलब
ब्रेन को उनके समझ के उनको आंसर करना होगा। उसके माइंडसेट को सोच के उनको आंसर करना होगा। फिर एडोलेसेंस में कैसा होता है, ये 12 से 18 साल जैसे बोला, इस टाइम में आपको दोस्त बनना पड़ेगा उसके, उसके फ्रेंड्स को। You know what type of friends they have, good, bad. It's your perception. But in their eyes, they are children with golden spoon. They are their life right now. In this stage, 12 to 18 years of age. अगर किसी दोस्त के सामने आपने, दोस्त के सामने या दोस्त के बारे में आपने उसको बोला, you have to have a lot of brainstorming before doing that, parents, because for them, they are the perfect child. For their friends are the perfect child. And telling you the flaws of their best friends, they will take it in a very wrong way. And the thing that will happen is that they will hide from you. They will start hiding from you. They will not share with you. वो छुप छुप के वो काम करेंगे जो आपको बोल के करते थे। तो उस टाइम वैसे दोस्तों को अपना दोस्त बनाना जरूरी है। यू वांट टू हैव अ नाइट आउट, वेरी गुड, लेट्स हैव अ नाइट आउट इन आवर हाउस। आई एम स्पॉन्सरिंग द नाइट आउट। बुला लो तुम्हारे दोस्तों को। So their parents should know you are the cool mother, you are the cool father. तब एक क्या होता है, being friends with your friends in this stage is very important. इस स्टेज में अगर तुमने उसके दोस्त को अपना दोस्त बना लिया, तो तुम्हारा बच्चे का दोस्त कुछ गलत करने से पहले सोचेगा, आंटी तो मुझे पूछेगी, इसको आंसर मेरे को करना पड़ेगा। उस दोस्त को भी पता होना चाहिए कि इसकी मम्मी मुझे बहुत भरोसा करती है। तो वो तुमको, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, मैं बाहर बीच में मैंने 11-12 में मैं बाहर खाने लगी थी, घर पे नहीं खाती थी, थोड़ा बाहर मोमोज एंड रोल्स पे ज़्यादा दिल आ गया था। तो माई मॉम यूज्ड टू से, माई फ्रेंड शी विल कॉल एंड टेल हर कि ये माई डॉटर हैज़ नॉट हैड एनीथिंग, देख लेना कुछ खाए तो, आई ट्रस्ट यू सो मच, देखना ना वो जंक फूड खाए। तो शी विल थिंक, अरे बाप रे, ये रेशमी की मम्मी मुझे बहुत ट्रस्ट करती है। तो देन शी विल से, यार घर पे क्यों नहीं खा के आती है? मैंने कहा तू कब से मेरी मम्मी बनने लगी? बोलती नहीं, नहीं रेशमी मुझे ना खाना चाहिए था। सो दिस इज़ हाउ थिंग, बिकॉज़ इस स्टेज में हम अपने माँ-बाप से ज़्यादा अपने दोस्तों की सुनते हैं। दोस्तों के, बिल्कुल। यस, द ट्रस्ट इज़ एट अ डिफरेंट लेवल। मूवी देखना है ना, बंक करके क्यों देखना है? चलो मैं लेके चलती, चलो तुम्हारे दोस्तों को बुलाओ, चलो मूवी जाते हैं। ये चीज़ में क्या होगा, तुम्हारे बच्चे बंक करके मूवी देखने नहीं जाएँगे। उसको पता है मूवी देखना है तो मेरी माँ को बोलते हैं ना यार माँ लेके जाएगी। सो बी फ्रेंड्स एट दिस स्टेज। दोस्तों को दोस्त बनाओ अपना, बच्चों के दोस्त को दोस्त बनाओ अपना। ये दिस इज इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज। और इससे क्या होता है, बट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम? बिकॉज ड्यूरिंग द एडोलेसेंस ना, young people go through processing of identity formation, which involves figuring out who they are, how they want to lead their life, making choices, taking decisions, ठीक है, learning new things about themselves and how they fit into the society, ठीक है। मेनी पीपल ट्रांसजेंडर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये एडोलेसेंट स्टेज में होता है। सो फॉर देयर पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक मेंटल स्टिग्मा हटाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ किड्स, चाहे एलजीबीटी किड्स हो। Understanding who they are, what they want, their needs, and opening up in front of parents, for them it's a very, 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 very difficult task. But you, first thing you as a parent you have to do is that थोड़ा स्टिग्मा को बैक स्टेप लेके डिस्कस कर अपने बच्चों से, टेक प्रोफेशनल हेल्प फॉर देम। निकाल देना घर से, बेदखल कर देना इज नॉट द आंसर। अरे यार, इतने साल तक आपने उसको पाला है, पोसा है, अपने दिल से लगा के बड़ा किया है। कैन यू इमेजिन अ लॉस अ मदर गोज if they sees their child's death? That pain is unbearable, that pain is unbearable. सो जिस बच्चे को हम लोग अपना खून पसीना आंसू सब देके बड़ा करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइफ चॉइसेस और देयर फिजिकल चॉइसेस, हम उनको घर से बाहर निकल देते हैं, शक्ल दिखना बंद कर देते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट एरा, यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, फॉर यू इट्स सिन, गो टू साइकोलॉजिस्ट,
talk to them, go through CBT therapies. CBT will help you change your mindset. For that you need somebody to talk to people, talk to parents who are going through the same problem. But जिसको मतलब they themselves they don't know what they are saying, they themselves don't know what they do. Help them, be with them. But just because of your mental stage, just don't disperse them. I'll tell my husband cannot take the thought of my daughter will marry and go. Nah, no need of marriage. Let her be with me forever. Don't need. My daughter will be मेरी आंखों की परी है वो कहाँ कहीं नहीं जाएगी. बट आई नो द ट्रूथ. उसके बड़े होंगे, उसके बॉयफ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स होंगे. सो इफ यू आर नोइंग दिस, आई हैव टू हैव एन ओपन माइंड. कल जब होगा, आई कांट से हाउ डे यू हैव अ बॉयफ्रेंड. आई कांट से दैट. उल्टा रैदर आई वुड से दैट पहले मुझसे मिलाओ, फिर हम पापा को अलग से शांति से समझाएंगे. फर्स्ट मुझे मिलाओ, मुझे देखने दो कैसा है. मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे दैट आई नीड अ प्रॉपर आंसर फ्रॉम हर. Why him? What have you seen in him? So these all things I cannot say. बैठो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला है, क्या करते हैं वो, ऐसे नहीं बोल सकते. प्यार से, okay, so I've heard you have chosen somebody special though. So what does he do? एक friendlier way में, it will make them open up. कुछ चीजें जो सोच के भी नहीं बोलते वो तब बोल जाएंगे. So be friends for this stage. Be friends. और उसके फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स बनो. Be the cool mother, be the cool father. Then you see, your child will be yours. Your child will adore you. The child will pray that ऐसे parents होना चाहिए. My father was one of them. My mom was a bit strict one. For my mom, मैं पुणे पढ़ने आ रही थी. My mom was like, वहाँ कोई नहीं है, नहीं जाएगी, नहीं करेगी, नहीं हो सकता है. I can't allow my daughter. My father was like, Papa, please, I want to study BBMIT. That is not in Kolkata. I want to try in Pune. So I tried all my sources and this and that. And I was like, Papa, I just want to give it a try. Mummy, no. एक ही बेटी है, ऐसे कैसे हम लोग छोड़ दें? No. And all these things. And my dad was like, okay, fine. Give it a try. Whatever you want, I am there. अगर नहीं कर पाते हो, if you are not succeeding, कलकत्ता वापस आओ, डैश कॉलेज में जाओ, एडमिशन ले लो चुपचाप. तुम्हारे भाई भी वहां से पढ़े हैं, तुम भी वहीं से पढ़ो. नहीं भाई, पापा का भरोसा है, करना ही पड़ेगा. उन्हें आई गॉट माई एडमिशन. ठीक है. दिस थिंग मैटर्ड कि मेरे पापा ने मुझे उस दिन मेरा सब कुछ किया था. सो कोई भी नाइट आउट्स विदाउट इन्फॉर्मिंग देम मेड मी थिंक ऑन दिस दैट अगर मैंने कुछ गलत किया, कोई नाइट आउट किया जिसके बारे में मेरे पापा को नहीं पता है. मम्मी यस डायरेक्टली नहीं बोल सकती, जान मार देगी. पापा को मैं बोल सकती हूँ कि पापा मैं दोस्तों के साथ यहाँ पे हूँ, आप वीडियो कॉल कर लो, मैं फोन उठाऊंगी, मैं ये कर रही हूँ, या पापा मैंने ये किया है. भाई कल कुछ भी होता है, आई नो माई वे बैक. आई नो कि आई कैन टेल माई पापा गलती हो गया. आई नो दैट दे शुड हैव देयर वे बैक. They should have somebody to come and say, Papa गलती, Papa sorry, Papa और नहीं होगा. This thing, और nobody can blame my dad कि देखा और बाहर भेजने का नतीजा. ये चीज मेरे दिमाग में घुस गया कि that man trusted me. I have to die, but I have to make sure कि nobody questions his decision. So that thing my dad taught me. So that time he was the friend I required. So adolescence में ये इसका इम्पैक्ट इन लेटर लाइफ क्या होता है वो भी. Adolescent who are successfully navigate this stage of development, they develop a strong sense of identity. You know, I knew what to do. I knew this. I was adamant. मेरे मतलब मैं कॉलेज में थी, मैंने मैंडरिन पढ़ना चालू किया था सिफिल से, सिम्बायोसिस से, लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से. सो somebody said that सब कुछ साथ में नहीं होता है. That made me think, ऐसे बोला अब तो करना ही. आई कंप्लीटेड ऑल 3 सर्टिफिकेशंस विथ माय कॉलेज. सुबह कॉलेज पढ़ती थी, शाम को 6 बजे यहाँ से सिम्बायोसिस जाती थी, सिम्बायोसिस में लैंग्वेज सीख के रात को वापस आती. पापा करना है पापा भी बोले ओके चलो.
फिर स्कूटी खरीद के दिया, क्यों? बस में टाइम वेस्ट होता है, क्लास टाइम पे पहुंच नहीं पाती, पापा ने स्कूटी दे दिया। बिकॉज ही ऑल्सो हैड, इसने बोला है ना, ये करेगी, इसने ठाना है ना, ये करेगी। सो दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो मेरा था, दैट मेड मी डू व्हाट आई एम नाउ। True. आई owe it to him. And with that confidence and that clarity about my future, ठीक है, that helped me because of my father's friendship behavior, friendly behavior. फिर मुझे एक बार एक मैसेज किया था उन्होंने, आई स्टिल रिमेम्बर, कि आई नो दैट, मेरे पापा अरुणाचल में रहते थे, मैं अपने भैया और मम्मी के साथ कलकत्ता में बड़ी हुई है। तो मेरे पापा ने, एक जब मैं पुणे आई थी, मेरे पापा ने, आई स्टिल रिमेम्बर, ही टोल्ड मी दिस थिंग, दैट यू हैव मिस्ड योर फादर्स लव योर लाइफ। साल में एक बार मिलते थे, क्या ही मिलता था, एक बार या दो, दो बार मैक्सिमम, एक एक महीने के लिए मिलना होता था। सो यू हैव मिस्ड ऑन दैट। सो आई नो नाउ, बीइंग अलोन, नाउ बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट, you might choose somebody Hmm. with the same affection. You might search for that affection. You must be looking for that affection that you missed your own life. So no matter any Khan or John, Hmm. I will respect that. That Khan or John means that regardless of the religion. हाँ. So that word I still remember. Regardless, he is a Khan or John. Who's somebody with three things: respect, trust, I think love, that's what he said. But he did not say the word love. He said it something else in a more crushed way. He had the tendency of crushing few things and saying. So, but the trust and respect दिमाग में घुस गया था. Okay. He told me before I had feelings for somebody, or he must have gauged कि now she's on her own, she might have a partner or something. So that is what he told me. He choose somebody. Before choosing only, he told me, choose somebody who is supportive of your decisions. True. So when I was looking into my husband or a partner, I had these things in my mind, brainwashed or subconsciously before finalizing other person. I had these things: support, respect, and trust. True. So leading to difficulties in decision making होता है, अगर इस टाइम में रोल कंफ्यूजन अगर होता है ना, तो फ्यूचर में डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है, रिलेशनशिप चॉइसेस होता है, करियर चॉइसेस हो जाता है। तो एडोलेसेंस मीन्स, मान लो फ्रेंडशिप, बच्चों के दोस्त, दोस्त के दोस्त, एंड देन कम्स द लास्ट स्टेज, दैट इज नॉट द लास्ट स्टेज, आई विल से द फिफ्थ स्टेज, rather अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली एडल्टहुड, सॉरी, अर्ली एडल्टहुड इज 18 to 40 years. So early adulthood starts from 18 to 40 years. इसमें आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इस सेक्शन में एक बिल्डिंग क्लोज रिलेशनशिप, आप अपने लाइफ पार्टनर्स चूज करते हो, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटी फ्रेंड्स, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं आपके लाइफ में। तो दिस स्टेज में इट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग इंटीमेट मीनिंगफुल रिलेशंस जो आपके लाइफ टाइम में रह जाते हैं, इसी स्टेज में फॉर्म होता है। इस स्टेप मेकिंग डिसीजंस अबाउट करियर्स, आप करियर चॉइसेस करते हो, आप करियर चेंजेस करते हो इस स्टेज में, बिकॉज 40 के बाद आप उसी लाइफ से आपको रिटायर होना है। तो ये 40 के बीच 18 टू 40 ईयर्स आप अपने करियर डिसीजंस करते हो। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट ये इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, यू चेंज योर करियर, यू अपस्किल योरसेल्फ इन दिस स्टेज। एंड उसके बाद इट्स अबाउट फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल क्लोजनेस विथ अदर्स, कि कितना किसी से नजदीक जाना है, किससे कितना दूरी बनाए रखना है, ये आपका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। एंड एस्टेब्लिशिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, रोमांटिक पार्टनर्स इज क्रूशियल फॉर इमोशनल वेलबींग। और इसका इम्पैक्ट लेटर डेवलपमेंट में ये आता है, सक्सेस इन फॉर्मिंग close, trusting relationship leads to emotional fulfillment and sense of connection. See, a mother connects at this stage, वो birth देती है 40s के अंदर, and फिर वो choose करती है उस person से open. So this is how this works. And failure in forming these can lead to isolation and loneliness, depression,
and which may contribute to other mental health issues like anxiety, depression and ठीक है। इसके बाद आता है मिडिल एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड इज 40 to 65। इसमें आता है जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। ये 65 तक आपका जो चॉइसेस कर चुके हो 40s में, 40s तक उससे अपना जिंदगी आगे गुजारना है, तो उसी में स्टैग्नेंट और इसी में आप स्किल करना है। आप चॉइसेस चेंज नहीं होते होने से टफ हो। उसमें होता है कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, फ्यूचर जनरेशन। आपको अपने बच्चों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अपनी सराउंडिंग्स, अपने माँ बाप को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने पियर्स को देखना है, फ्रेंड्स है, ठीक है। और इस स्टेज का इम्पोर्टेंस ये है कि एडल्ट सीक टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, सपोर्ट द नेक्स्ट जनरेशन। बच्चे बड़े हो रहे हैं, nephews, niece and all. They could be raising like this can be अपने बच्चे mentoring करते हैं कोई and then contribute to their communities also. कोई चर्च से जुड़ा हुआ रहता है, कोई सोसाइटी में जुड़ा हुआ रहता है। It's the time for achieving personal goals, building a career and leaving a legacy. This is the time. पुलिस वाले जब रिटायर करेंगे ये लेगेसी उसी में वो जाएंगे। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आपने जैसे अपना रिटायरमेंट तक का काम किया है, उसके बाद का लाइफ को बच्चों को जैसे सिखाओगे, बच्चे बड़े होके आपने अपने माँ बाप को चिल्लाओगे, बदतमीजी करोगे बच्चों के सामने, तो वो लोग उस स्टेज में आपको वैसे ही करने जाते हैं, बिकॉज वो लोग जानते मेरे पापा ने भी यही किया, मेरी मम्मी ने भी यही किया। एडल्ट्स हु एक्सपीरियंस जनरेटिव फीलिंग प्रोडक्टिवनेस, मतलब सामने से शेयर करना, फुलफिल्ड होना, इन्वॉल्वमेंट है, होता है ना इंट्रोवर्ट। दोज हु फेल टू फाइंड द मीनिंगफुलनेस वे टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वो स्टैग्नेशन में चले जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ पर्पसलेसनेस एंड डिसैटिस्फैक्शन। बुढ़ापे में होता है ना, मैं जी के क्या करूं, ये उसका नहीं। एंड लेट एडल्टहुड मतलब 65 प्लस, तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, तो ये पूरा रिटायर्ड लाइफ होता है, वो रिफ्लेक्ट करेगा। और डिस्पेयर होता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो कुछ बन ही नहीं पाया, ये भी उसी लाइफ होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपको रिटायरमेंट के बाद क्या बोलना है, आपको आज काम चाहिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग शुभम, that I really need to highlight in this is that children from 0 to 18 years absorb their parents and the caregivers and the people they live around. ठीक है, that live around them, their friends, their families, their close relatives, anybody. अगर घर में ज्यादा झगड़ा होता है, kids nowadays tend to have mental disorders at very small age. 8 साल के बच्चे को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। वाई? माँ बाप कंटिन्यूअस झगड़ा करते हैं, सोसाइटी में कंटिन्यूअस झगड़े चलते हैं, पेरेंट्स और माँ कंटिन्यूअस झगड़े करते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कपल्स में झगड़े नहीं होने चाहिए, पेरेंट्स है, हस्बैंड वाइफ है, बेटा बेटी है, माँ बेटी है, झगड़े देंगे। Don't do it in front of your kids. If you are seeing you are losing it, tell the person in front of you. 2 minutes hold करो, बच्चों को दूसरे रूम में भेजो, टीवी चालू कर दो या ऐसा कुछ चालू कर दो जिससे उसको आवाज नहीं आए दे, बाहर खेलने भेज दो, झगड़ा कंटिन्यू कर। बच्चों के सामने हाथ उठाना, बच्चों के सामने झगड़ा करना, एब्यूसिव वर्ड्स यूज करना, अल्कोहल, ये सब please, as a psychologist, I'm begging you for the future generation, stop it. जो भी पर्सनल डिस्क्रिपेंसेस है, be it with anybody, be it with your parents, be it with your partner, be it with your society members, बच्चों के सामने अवॉइड करो। बच्चे सुसाइडल हो रहे, बच्चे डिप्रेशन हो रहे, and that depression is leading to schizophrenia, bipolar disorders at this young age we are seeing। और एक और चीज, फोन, Reel is addictive. Reel is addictive. Stop giving reels to your kids.
रेदर True. एक मूवी कोई एज अप्रोप्रिएट मूवी चला के 2 घंटा देखने दे दो, बेटर। रील्स True. फोन में पकड़ा के मत दो, बच्चे एडिक्शन हो रहे हैं। देयर इज अ चाइल्ड इन अ रिहेबिलिटेशन, हिज एज इज 12 इयर्स, ही इज सफरिंग फ्रॉम फोन एडिक्शन। उसके हाथ से फोन निकलता तो वायलेंट हो जाता है। So, as a psychologist, as a parent, these are the red flags I am telling, and I want other parents to also be aware of this. बच्चों के सामने झगड़ा, ऊंची आवाज में बात, अब्यूज करना, हाथ उठाना, मारना पीटना, डोंट डू इट। आपके बच्चे सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड दे विल हैव मेंटल डिसऑर्डर्स। हर चीज मेंटल मतलब पागल नहीं होता है, उनके बॉडी में आपको प्रॉब्लम्स दिखने चले जाएंगे। आई हैव केसेस जो बच्चा ट्विच करने लगा है। आई हैव केसेस जहाँ पे बच्चे डिफॉर्म होने लग रहे हैं, दे कांट स्टैंड स्ट्रेट, एंड इट्स मेंटली, इट्स साइकोसोमैटिक। Thank you so much, ma'am. आपने इतना टाइम दिया. I hope this video was very helpful for our audience. And once again, thank you. यू आर मोस्ट वेलकम।